Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing good and be safe. So NEET is just around the corner and I know कि इस समय इतना anxiety होता है इतना ज़्यादा. Even if you have studied, not studied, anxiety is a must before any exam. तुम कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लो, anxiety will be there. It's a good sign too, but just not let it get heavy on you. Disclaimer of the video is I'm not going to tell you strategy जो आपको 15 दिन में 200, 300 से मार्क्स 600 प्लस कर देगा. No, पूरे साल की पढ़ाई मैटर करती है. Yes, it does matter and I can't say more on this topic because पूरे साल की पढ़ाई मैटर करती है. 15 दिन में आप बस पढ़ने चलोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. Let's keep this quick and short. The first and the most important thing is appearing for mock test every day. Mock test देने से आपको फायदा क्या होगा? Because the last 3 hours, you know, the mean time that you have to perform, उसकी आपको आदत लगेगी. Because every day आप 3 घंटा टेस्ट दे रहे हो and preferably give it in the time 2 to 5 जिसमें नीट होता है. Because you know your biological clock, your mental clock will be set by that and you would be most efficient in that time period. So 15 is the minimum mock test that you should do. There are many students who appear for more than 60 mock tests because उनके syllabus बहुत पहले खत्म हो जाते हैं. That is also a good thing, that is up to them. But it doesn't mean कि किसी ने 15 mock test लगाए, किसी ने 20, किसी ने 60 mock test लगाए हैं तो उनमें बहुत difference है. ऐसा कुछ भी नहीं है. I personally did 15 mock tests before exam, maybe 20, but not more than that क्योंकि मेरा syllabus एक महीना पहले मैंने खत्म किया था. Syllabus खत्म in the sense I was not a person जो एक बार syllabus करे. I used to do chapters every day. तो एक महीना पहले मेरा रिविजन ऐसे हो रहा था कि एक बार में मेरा सिलेबस नहीं खत्म होता था. मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलती थी. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट बट दैट डजंट मैटर. लास्ट 1 मंथ में आपको मॉक टेस्ट करने हैं एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स 400 से ऊपर नहीं जा रहे हैं. सो 400 से ऊपर नहीं जाने का रीजन 2 हो सकता है. फर्स्ट, you haven't studied enough, आपके concepts अभी भी unclear हैं. दूसरा, you must be attempting a wrong test series. Now NEET is clearly NCERT based and बहुत से test series like मैंने तो NEET first time 2019 में दिया था, उससे पहले NEET tough आता था. So the coaching had given us paper like that only. हम लोग की practice उस tough level पे हुई थी. तो जब एकदम NCERT level का paper आया, it was tough for me to attempt at that time. But in NEET 2021 I attempted just new light test series, PW test series and मैंने और कोई test series नहीं attempt की थी because I was searching for a test series जो मेरे को एकदम NCERT based content दे, NCERT based questions दे, उससे ज़्यादा नहीं. Physics में question थोड़े high level हो जो मुझे PW में मिले थे. And yes, I don't know about Akash and Alan at this time because you know उस समय उनके questions बहुत hard थे. अब उनके questions कैसे आते हैं इसका मुझे idea नहीं है. But yes, if you are attempting a test series जिसमें बहुत ही ज़्यादा irrelevant questions हैं नीट से, please don't attempt it. Try to attempt a test series जिसमें NCERT based question हो. आपको वो confidence भी देगा and आपके marks भी शायद उससे बढ़े अगर आप गलत test series attempt कर रहे थे तो. You can also attempt OSWAL mock book test. That is also really good. उसमें भी अच्छे खासे papers हैं. You can attempt the previous year questions too. Third point is please don't take up a new resource right now just 15 days or 1 month before NEET or 2 months before NEET because you just can't focus on a new material right now. आपको कितने भी अच्छे नोट्स मिल रहे हो, कितनी भी अच्छी बुक मिल रही हो, बट अभी अचानक से एकदम आप अपना पैटर्न ऑफ रिविजन मत बदलना. जिस चीज़ से आप रिवाइज कर रहे थे उसी से रिवाइज कर सकते हो. इफ़ यू वर रिवाइजिंग होल बुक, होल NCERT, do that. If you're revising your own notes, do that. Don't switch. If you were revising from my notes, which are NCERT thread notes, don't switch. And if your preparation is not that much, you are thinking कि I want some concise way of information जो मेरे को पूरा chapter revise करवा दे but I'm not able to take the book or I'm not able to take notes from myself, then you can use handbooks. Now in handbooks, I personally felt that OSWAL handbooks are much better because they have a lot of information and in such a This book has got all the chapters that are mentioned in the NCERT and the mnemonics that you need. I like that they have put together all the short forms in one page, so that's very useful. Flow charts are given at the starting of each chapter to give you an overview. For example, body fluid and circulation has been captured in 4 pages in such a beautiful way, all the bullet points for you to make it easier because sometimes reading in paragraph is very tough. Actually, when anxiety hits you just 15 days before the exam, it's very useful. Also, at the last of each chapter, they have given know the facts, which are few extra facts which might give you an extra edge to your exam.
पूरे बायोलॉजी में हर जगह किसी ना किसी चीज़ के फादर हैं. पहली बात तो अपने फादर को संभालना बहुत मुश्किल है, बट येस दे हैव गिवन इट एट वन प्लेस सो इट्स ईजियर. ऑल्सो देयर आर मेनी अपेंडिक्स लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विच माइट बी हेल्पफुल. Like this is the book, you can use it. And again I'm saying please, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 15 दिन पहले कोई नई चीज़ स्टार्ट करोगे वो आपको तुरंत रट जाएगी. यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम सजेस्टिंग यू बिकॉज अगर कुछ भी आपके पास नहीं प्रिपेयर्ड है एंड यू वांट टू स्टिल रीड समथिंग, देन यू कैन यूज दीज हैंडबुक. कीप रिवाइजिंग योर फॉर्मूलाज, फिजिक्स फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री रिएक्शंस एवरी डे. लास्ट 15 days में you should revise all the reactions, all the tables, all the formulas. रिवाइज करो. एंड अभी केवल मॉक टेस्ट में जो आप क्वेश्चंस बना रहे हैं बस वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम है. अदरवाइज कुछ और नई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मत चलो. रिवाइज योर एरर कॉपी, योर मिस्टेक कॉपी, जिसमें आपने पहले जो क्वेश्चंस लगाए होंगे उसकी मिस्टेक्स होंगी, उसको रिवाइज करना. कोई नए क्वेश्चंस मत बनाना. जो नए क्वेश्चंस आप बनाओगे वो आखिरी के 15-20 मॉक टेस्ट में ही बनाओगे, नॉट मोर देन दैट, एंड दैट इज सफिशिएंट. Don't mess up the silly questions. Now, if you have watched my previous video, that is the NEET collection video जो मैंने एकदम starting में डाले थे, you would have known I told you कि अपने silly mistakes भी अपनी error copy में लिख लो कि तुमने उसमें क्या सोचा था, तुमने क्या गलत पढ़ लिया था. And do revise that, क्योंकि कभी कभी आपको सब चीज़ आती है but silly mistakes में इतना marks चला जाता है, you just panic and it doesn't end up good. अगर आपकी silly mistakes में marks जा रही है, that is not good. So please revise your mistakes. I am stressing, please revise your mistakes in the last 15 days, क्योंकि वो mistakes आपको main exam में नहीं करनी है. आपने पूरे साल कर ली but आपको main exam में वो नहीं करनी है, इसीलिए उस चीज़ को आपने एक अलग कॉपी में नोट करके रखा था, because they were that important. Don't leave any chapter. ये मैं बहुत स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि प्लीज़ कोई चैप्टर मत छोड़ा करो in any subject. बट अगर आपके कोई भी चैप्टर छूट जा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, मेरे भी छूटे थे, आई एम नॉट सेइंग दैट, लाइक मेरा सरफेस केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं रटा हुआ था. एंड बाय रटा आई मीन लिटरली मेरे पास एक एक वर्ड मुंह में नहीं थे. जैसे मेरे बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई जस्ट stormed everything in my head, क्योंकि मेरा पहला तो सेकेंड ड्रॉप था वो, एंड आई वाज सो टेंस. आई वाज लाइक अब अगर मुझे एक भी चीज़ नहीं याद रही मेरा नीट नहीं निकलेगा. दैट्स नॉट द माइंड सेट, बट यार ड्रॉपर्स में वो दिक्कत होती है, लाइक दे ओवर थिंक अ लॉट नॉर्मली, बट नॉर्मली से हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं. सो या प्लीज़ 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 कोई चैप्टर मत छोड़ो. बट अगर आपके चैप्टर छूट गए हैं तो ट्राई कि उसका कोई शॉर्ट वीडियो आप देख लो. जैसे PW में काफ़ी सीरीज़ निकलती हैं, उम्मीद सीरीज़ एंड ऑल दैट. अभी मुझे नहीं पता कौन सी निकली हुई है बट फॉर श्योर होगी. सो प्लीज़ वॉच दोज 2 to 3 आवर्स लेक्चर्स, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको इतना तो कॉन्सेप्ट दे देंगे कि अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप वो सॉल्व कर ले जाओगे. जैसे फॉर मी आई लेफ्ट रे ऑप्टिक्स. नाउ रे ऑप्टिक्स मैंने छोड़ा ऐसे नहीं था, मतलब मुझे आता था बट मैंने उसकी प्रैक्टिस 2 महीने से एकदम छोड़ दी थी, मुझे नहीं आता था. और लास्ट के दिन में मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, बट तब भी मेरे पास 20 days बचे थे और मैंने एक दिन के अंदर मैंने सारे लेक्चर्स उसके देख लिए थे. सुबह उठी जल्दी, रात तक मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए थे और फिर 5-10 दिन उस चैप्टर की प्रैक्टिस की थी. बट स्टिल मेरे नीट में 3-4 क्वेश्चन उसी से गलत हुए थे बिकॉज बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी. सो या प्लीज़ ट्राई नॉट टू लीव एनी चैप्टर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो. बट इफ़ अगर आपसे छूट जा रहे हैं तो एटलीस्ट उतना काम कर लो कि अगर कोई ईजी क्वेश्चन बाय चांस आ गया तो वो आपसे ना छूटे. एंड फॉर दैट दो सीरीज ऑफ 2 to 3 hours इज वेरी गुड. आई मेंशन सम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि वो सब सीरीज कौन कौन सी हैं. एंड आई थिंक यू मस्ट हैव एन आइडिया. यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है इन सब चीज़ों के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर पीस ऑफ माइंड. स्ट्रेस एंड एनजाइटी इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ओके, होना जायज़ सी बात है. बट आपको उसको अपने पर हावी नहीं होने देना है, स्पेशली लास्ट दिन तो नहीं. आई टेल यू अ स्टोरी. मैं ये बातें कह रही हूँ बट लास्ट डे लाइक मेरा नीट था 12 सितंबर को एंड 11 सितंबर की नाइट में अराउंड 10 to 11 PM जब सब सो गए थे, आई हैड अ सिवियर पैनिक अटैक एंड आई वॉज लिटरली ऑन द फ्लोर क्राइंग. आई वॉज नॉट इवन शाउटिंग, आई वॉज क्राइंग साइलेंटली और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी. आई वॉज लिटरली बॉलिंग माई आईज आउट और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी बस एक रीज़न से, क्योंकि मुझे सरफेस केमिस्ट्री की कुछ लाइंस नहीं याद आ रही थी. या दैट्स द लेवल ऑफ एंजाइटी वी एक्सपीरियंस. एंड बट 1 घंटे बाद आई थॉट अब कुछ हो नहीं सकता है, जितना किया है पूरे साल उस पर भरोसा रखो एंड जस्ट गो फॉरवर्ड विद इट. नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 6 or 7 AM. मैंने थोड़ी बहुत बायो फिर से रिवाइज की, दोस्त
इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स, बिकॉज वो 4 चैप्टर आर लाइक द मोस्ट स्कोरिंग. उससे बहुत क्वेश्चंस आते थे लास्ट प्रीवियस ईयर में. सो या रिवाइज दैट वन मोर टाइम एंड आई वेंट टू द सेंटर पे भी घुसते घुसते मेरे आंख में लिटरली आंसू थे. इफ एनीबडी वुड हैव वॉच माई आईज दे वुड हैव नोन कि ये लड़की अब तो रो ही देगी भाई. ओके, या आई एम नॉट जोकिंग. मैं अपने क्लासरूम में भी जाके बैठी तो वहाँ भी मेरे आंख में आंसू थे एंड लिटरली आंसू मेरे गिर रहे थे. दैट वॉज द अमाउंट ऑफ एंजाइटी आई वॉज एक्सपीरियंसिंग. बट समवेयर इन माई हार्ट आई न्यू कि मुझे इस चीज़ को अपना हावी नहीं होने देना है. मुझे हो रही है, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर इट. इट्स ओके. एज सून एज आई गॉट द पेपर ऑल दैट एंजाइटी वेंट अवे. नॉट सीइंग कि मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, but at that time I wanted my mind to be totally stable, not at all disturbed because of any silly reason. क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत की है. I have to trust myself and I started attempting the paper. This that happened in NEET 2021. अगर फिजिक्स आपकी टफ आ रही है, लेंदी आ रही है, टाइम ज़्यादा लेगी, आपको ये पहले ही फील हो जाएगा. पेपर चेक करते हुए आपको पहले ही फील हो जाएगा फिजिक्स लंबी आई है. What I did in my time was I solved at least 10 questions of physics in the first 25 minutes and then I switched to bio. I solved 45 questions of bio, then I again switched to physics. I solved 5 questions, then again switched to bio. I solved 45 questions more. That way I completed my bio within the 1 hour because मेरी bio एकदम जुबान पे थी. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा. मुझे at least 20 minutes लगे होंगे. बट फिजिक्स को मैंने एक साथ नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने फिजिक्स को एक साथ अटेम्प्ट किया होता आई एम श्योर मुझे 1.5 आवर या 2 घंटे लग गए होते. आई ब्रोक द क्वेश्चंस इन कंपार्टमेंट्स लाइक कि 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड आई डिड दैट. उसमें से जो नहीं आ रहे थे वो मैं तुरंत छोड़ती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी. उसके बाद जब एक राउंड में मेरी फिजिक्स हो गई, फिर दूसरा राउंड गई, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आए थे मेरे को वो अटेम्प्ट किए. तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लेंदी आ रहा है उसको एक गो में मत करना, क्योंकि आप अपना पूरा दिमाग उसमें खर्च कर दोगे उसी समय. और बाकी सब्जेक्ट्स जो ईजी आए होंगे उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी. सो उसको तोड़ लेना. अगर आपको फिजिक्स ऐसी बहुत टफ लगे तो तोड़ लेना उसको 10-5 क्वेश्चंस में जितने भी, और उन 10-5 क्वेश्चंस के बीच बीच में आप कोई और सब्जेक्ट करते जाना. नाउ दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर मैनी स्टूडेंट्स कि अचानक से स्विच करना किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. बट दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी. एंड मैंने अपना दिमाग इतना स्टेबल कर लिया था कि मैं अगर स्विच कर रही हूँ तो मैं बहुत प्रॉपरली स्विच कर रही हूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अभी छोड़ा है, किस पे मार्क लगाया है और किस पे अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. दैट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. वो और कोई इंप्रूव नहीं कर सकता, वो आप इंप्रूव कर सकते हैं. सो बी काम, स्टे काम ऑन दैट डे. एंड अगर आपका गलती से किसी एक बबल में मार्क हो जा रहा है, लाइक यू आर जस्ट मार्किंग एंड यू रियलाइज कि मैंने गलत बबल पे मार्क कर दिया और आपकी एक लाइन बस बनी है उस बबल पे, डोंट वरी. मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो मार में रीड नहीं होता है. अगर बस एक लाइन बनी है, अगर आपने उसको हल्का से भी कर दिया होगा तो वो आई डोंट थिंक सो ले पाता है उसको मशीन. बट या अगर एक लाइन लगी है तो उसका टेंशन मत लेना. बाकी करेक्ट वाला फिल करना प्लीज़. अपने रोल नंबर्स अच्छे से फिल करना, क्योंकि अगर आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपका रोल नंबर गलत होगा, योर होल ईयर विल गो टू वेस्ट. ये चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर मिस्टेक करना, लाइक बिल्कुल भी नहीं. एंड लास्टली आई वुड want all of you to perform very good in NEET 2023. I want you to see in my college. So yeah, I'm waiting for you guys and all the best. Perform your best. Please tension मत लो. अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, God is with you. They are with you. They'll be on that day with you. So don't worry. कितनी भी anxiety हो, just stand in front of the God. Tell him that I have done what I had to do. Now I want your help. Luck factor काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आई वोंट से कि लक बिल्कुल नहीं काम करता या लक काम करता है. सो जस्ट प्रे टू गॉड. मेडिटेट मुझे नहीं काम आता था, बट इफ़ मेडिटेशन हेल्प्स यू देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज उससे आपका दिमाग शांत होगा. And I hope I have said enough. I hope this video was helpful. I tried to compile all the things that you need to keep in mind on the last day. So yes, please subscribe to my channel if you liked all this. I make a lot of medical vlogs, and if you want to see me on the other side of the medical college, yeah, I'm there. So yes, till then, stay safe. Bye. I'll see you guys in the next video. Bye.